Good afternoon all. So let's begin with that digital electronics lab. So today we'll perform two experiments. The one experiment is of full adder designing, and the second experiment is of multiplexer designing. So first we'll see the theory of that, and then we'll design the circuit using the Tinker analysis. So first let's we design a full adder circuit. So first we'll try to understand what is full adder. So this experiment is for full adder. This screen is visible, no? One note screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So let's begin with the full adder. So in general, we perform a addition function. So how do we perform the addition function? Suppose we require to add a 5 plus 3. So the answer is 8. In simple uh, digit manner, if we need to add the two numbers, we can add directly with a method which we have learned in earlier age. So now, but the systems and computers, laptops, or calculators, they do not understand this language, the 3 plus 5. So they may mostly understand the language of binary numbers. So we know the binary numbers means a number which has two possible values. Either that number is 0 or a number is 1. So 0 is representing the low value and 1 is representing the high value. So to add two numbers, we require a circuitry. That circuit is add two bits. So they are the category of adder circuit. So one we called as a half adder circuit. Half adder. So I'd like to first differentiate this circuitry and then we'll design. So one we have a half adder circuit, and the advanced version of this we have a full adder circuit. Full adder circuit. And then we have a binary 4-bit adder circuit. What is the difference and what terminology they have? So first, half adders. In general, what we say, a half adder can add only the two digits. The two digit means if you have a number, two binary numbers. Suppose we have a number A and number B. So it can add these two numbers, and it will generate two outputs. One is some output, and second is a carry output. So in simple language, a circuit which add two digits, all the two inputs or two digits, that circuit is known as a half adder circuit. So for example, suppose the two numbers are suppose we have the two numbers A and B are 0, 0. So the outputs of is 0. If we have the A and B are 0, 1, then output is again 0. 1, 0, the output is 0. And sorry, the output is 1. Sorry. For summation, the output is 1. The output is 1. And for the 1, 1, the output is 0, but it generates one carry signal. So that is of carry signal. So that is a general perception for a half adder circuit. A half adder means a circuit which add two digits on the two numbers. And if we draw the hardwares, so to design a hardware, we required one AND gate and one XOR gate. So one AND gate and XOR gates are having the same inputs, A and B. And this AND gate generate a function of carry, and this XOR gate will generate the function of sum out. So this is a simple hardware. So if somebody asks you that key, what is a half adder? So we can say that the half adder that can add on the two numbers, two digits, not the two numbers. It can add on the two digits
A and B, and these are the single digit numbers. Single digit number means either they have the value 0 or either they have the value 1. So it can add two digits, the A and B. Means and a full adder. What is full adder? Full adder circuit means a circuit that add a 3-digit number. A 3-digit number means what? Why we require the 3-digit? Because suppose you require to add two numbers, the two-digit numbers. Suppose you require to add A0, A1 with B0, B1. Suppose you require to add these two numbers. To add initial first to A0, B0, we only require the half adder because no previous carry will generate. But suppose we have the two-digit numbers, two-bit numbers, A0, A1 and B0, B1. To add this kind of, to perform this kind of addition, we require a full adder circuit. Why we require the full adder circuit? Because when we add these two numbers, so it may possible that it will generate the carry, and that carry we have to consider, and that carry we have to add with these two numbers. Means in the second stage we have to add the three numbers, so that we require the full adder. So in first stage, it is only required to have a half adder. In second stage, we require the full adder. Suppose this number is 4-digit numbers. So we require, if it may be possible that the carry will generate here, that carry we have to add. So we require one more full adder, and it may be possible that it will generate the carry, and that carry we have to consider that it will generate the full adder circuits. So the difference between the half adder and full adder is that the half adder can only add the two numbers, two digits. Full adder can add the three numbers, means three digits. C in A1, B1 or A0, B0 or C in A2, B2 or C in A4 and B4. It can add these three numbers. It can add the two digits. It can add the three digits, or it can add the binary 4-bit adder. By binary 4-bit adder means a number A or number B. Both will have the 4 digits. A 4-digit means what? Suppose, for example, suppose we require to add 3 plus 5. So 3 means the 3, if you convert in binary, suppose this A is a 4-digit number and B is also the 4-digit binary number. Then you convert this 3 in binary means 0, 0, 1, 1. If you convert this 5 in a digit in a binary number, then that is equal to 0, 1. So that is equal to 5. That is equivalent to the 5, and this is equivalent to the 3. Now, if I add this number 110, carry is 1, 110, 000, carry is 1, 101, 110, carry is 1, 101, and 10. So that is equal to 8. So this is now equivalent to the. So suppose we have to perform this kind of application, this kind of operations. To add a 4-digit numbers, we require circuitry that will add these two numbers. So the maximum, the possible value for the A is what? The maximum possible value for the A is F, and maximum possible value for this B is also F. So it can add a FF, means two numbers with 1, 1, 1, 1 or 1, 1, 1, 1. It can add this. The maximum, the possible value for the A is 1, 1, 1, 1, and minimum possible value is for the A is 0, 0, 0, 0. Means it can perform the F plus F, addition of F plus F. It can perform the maximum. It can perform the addition of F plus F. Now, how to design this circuitry? So, to design this kind of circuit, the 4-bit binary adder, it is very difficult to design the circuitry using the gates, logic gates, because a single half adder will require the one adder and one XOR gate, one AND gate, one XOR gate. For the full adder, we required a replica of the circuit. We required an 8 replica of the circuit. So it's very difficult to manage this hardware. So we designed a specific integrated circuit that is known as an IC. And the IC of the number of that IC is 74283 or 74283. Yeah, 74283. So specifically, this IC is used to add two binary numbers with the 4 digits.
So what this IC means? So first we'll try to understand the structure of this IC. So this IC is basically a 16-pin IC. 16-pin IC, and it add a number with A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, and the sum of this, the first sum is represented as a sum 1, sum 2, sum 3, sum 4, and output is represented as a carry out, C out. So if I try to identify the pin numbers of this circuit, so we can easily find this pin diagram. You can easily find this pin diagram on Google. So if I just Google it, 7474283, so you can see this pin diagram. 74283 pin diagram. So we can easily have this pin diagram. So in this pin diagram, you can see that the pin number 1, this pin number 1 is for a sum 1, pin number 2 is for input B2, pin number 3 is for input A2, pin number 4 is for a sum of one number, pin number A1, pin number 5 is for the input A1, and pin number 6 is for input B1. So if I draw this, if I identify the pin number, then here we have the pin number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And here we have the pin number 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16 pin number. So to perform this experiment, हमने क्या किया कि we fixed the first lower order digits. We fixed this A0 as a 0, A2 as a 0, B1 as a 0, and B2 as a 0. We only performed the addition of these two numbers, B3, A3 with A4, and B3 with B4. So what the number is 0, 0, 0, 0. Whatever the value applied, we perform the addition of that value. So with this IC 74283, we perform the pin number, the 16 is always be a VCC. So pin number 16 is to connect with the VCC. Pin number 15, we connect with the B3 input. So this input B3. Pin number 14, we connect with the input A3. So this input. Pin number 13, we'll get the output summation of 3. Then pin number 12, we have the A4. Pin number 13, we have the B4. Pin number 14, we'll have the sum of 4. And pin number 9, we have the carry output. See. And all other pins we put at a ground. Sorry, the pin number 2 is not ground. 2 is a sum of 1, sum of 2. It will not ground. Pin number 2, 3. Pin number 4 is sum of 1. Pin number 5 is input pin, so you put connect with the ground. 6 is ground. You can connect the 7 also ground, and you can connect the 8 also ground. So here we require to have a 4 switches which generate a different value of A3, A4, B3, B4, and we'll check the output at pin number 13 and pin number 10. So is it clear? So we'll perform this experiment using the IC number 74283 using a Tinkercad. So you open Tinkercad. You open Tinkercad. Those who are performing, those who joined with the computer laptop, you please open this Tinkercad. Once you open with the Tinkercad, you first what we require? We require the breadboard. So you select the breadboard. Here we require the big, small, not small breadboard. We require the big breadboard because the connections, the number of inputs, the 4 inputs we require, 3 outputs we require. So it's large. So we require the larger circuit to design. Hence we select the larger breadboard. So first we select the breadboard.
Then you select, sorry, then you select, you search for power supply, POWER supply, SUPPLY. So you'll find this power supply. So select this power supply and place this power supply here. So first we select the breadboard. We place this breadboard here. Then required IC. So you select, you search by the IC number 74238. Or you search by 74238. So this IC is available. 283, not 238, 283. Sorry, 74283. You select this IC and put this IC here. You try to put this IC in between this 40 and 45 because we have to apply the so many number of inputs and we have to check the outputs. So you put that IC around 40 to 45. So you put this IC here, 40 to 45. Now, this is a power supply. So first we connect the power supply. First we create a power rail. So the positive means power. So we created power here, and this we connect a lower rail. Lower rail we also connect with the power supply. So this upper rail is used as a power supply, and this lower rail is also used as a power supply. These two lines are used for the supply voltage, to apply the supply voltage to the circuitry. Then we require a ground. So the circuit is large, so we select the black line and you connect this as a ground line. So we select this as a ground line. And here also you connect this with this ground line, so that this line is act as a ground and this line is act as a ground. This line is act as a power supply, this line is act as a power supply. So we created a two power supply and two ground rail, that is known as a rail actually. So we created a one ground rail and one the power supply. Now, first we require to have a switches. The switches for A3, A4, B3 and B4. So we select the switch. So we select the switch, slide switch. We place the four switches, 1, 2, 3 and 4. We put on a particular distance so that we can easily make the connections, otherwise jumble of wires are there. So we select the switches. Now it is difficult to identify the switches, so we put this command here, that is known as a node tool. Over the node tool you put this first switch is as, you write as a, suppose B3, sorry, we write as a B4. So we write as a B4. So this switch is pointing as a B4. It is very easy to identify, otherwise it is very difficult when we add these two numbers. Okay, which one is B3, which one is B4 and this. So we add title here. So this is of B3. So it's a B3. Then we have A4. So we write as a A4. Then we have the A3. The four switches, the switch A3, A4, B3, B4, as I told you, okay, we are performing the A3, B3, A4, B4, addition of these two digits, and the initial first two digits, A0, A1, B0, B1, we consider to be a ground. We'll put correct with the ground in the later stage. So first you make this. Now, for the switch, the terminal 1, for all the switch, 4 switch, the terminal 1 we connect with the power supply, and terminal 2 connect with the ground, and terminal 3 we use as an input terminal. So
terminal 1 we connect with the power supply. So this we have the power supply rail. We connect the power supply. Terminal 1 of the switch 2 we connect the power supply. Sorry, we convert this number. This should be a green because it's a power supply. So it should be a green. So we select as a green line. Green line. Then for the third switch, power supply. For the fourth switch, again a power supply. So for the first terminal of this all four switches, we connect with the power supply. Then a second terminal of all these switches are connected with the ground. So to connect the ground, we select the black wire. So it is easy to identify. So now we connect to the ground. The first switch, terminal 2. Second switch, terminal 2, we connect to the ground. Third switch, we connect to the ground. And the fourth switch, we connect with the. So this switches, this input we have first connected with the supply voltage. Means if the slide bar switch is at this position, means it's supplying the supply voltage 5 volt. And if the switch is at this position, then it will supply the 0 value. So as I told you, this B4, B3, A4, A3 are the binary numbers, means the two possible values, 0 or 1, 0 or 1. So we can change this value. We can toggle this value with the help of this switch. So now to calculate or to generate the output, we require the LEDs. So we select the LED. So to show the output, sum 3. To show the output, sum 4. And to show the output, carry output. We require the two LED here. We change the color of this carry. We put that as a green. So this is a carry to generate the carry output. And we know that it's a anode. So we connect the anode with this resistance. So we connect anode of this with the resistance so that a limited current will flow through the LED and it protects the LED to burn out. And the cathode means common terminal. This cathode terminal is connected to the ground. So we connect the cathode of all this LED with the ground. So first cathode with the ground, second cathode with the ground, and third LED cathode we connect with the ground. So यहाँ तक आप लोग सब दिख रहा है, यहाँ तक बना पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Okay. सर ये नेमिंग कैसे कर लीजिए हम लोग बना रहे स्विचेस ये नेमिंग यहाँ से करनी है, यहाँ से आप ले लीजिए. इससे हमको इस एलईडी को जो आउटपुट है, फर्स्ट एलईडी आउटपुट है, इसको मुझे मान लीजिए, इसको मुझे बनाना है. इट शुड बी S4. तो मैं इसको लिख देता हूँ S4. और ये जो ये एलईडी है ये S3 है. सम 3 बताएगा ये. We connect as a S3. And this LED is carry out. So we put as a C out. तो हमने इनको नाम दे दिया है ताकि इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाए. अब आईसी में हम पिन नंबर 8 को और पिन नंबर 14 को, पहले हम लोग पिन नंबर 16 नंबर पिन को we connect with the supply voltage. So we connect with the supply voltage. So green color कर देते हैं. So we first connect the supply voltage of this IC and we connect the pin number 8 as a ground. So we connect the pin number 8 as a ground. And again इसको हम black color कर देते हैं ताकि easily समझ में आ जाए कि कौन से ground से, because jumbles of wires है तो बहुत difficult होता है बाद में identify करना अगर आपने कोई mistake किया. So we perform this connections. Now we add digits B3, B4, A3, A4. तो अगर हम पिन डायग्राम देखें तो in this pin diagram the 15 number pin is B3 and 14 number pin is A3. So 15 number pin is B3. So here we have the B3. So we connect this B3 as a pin number 15. तो थोड़ा सा हम इनपुट को अलग कलर ले लेते हैं और यहाँ से डायरेक्ट वायर लेंगे तो बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर एक वायर यहाँ डाल देंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द सेकंड वायर. तो हम थोड़ा सा बाहर से ले जाएंगे इसको. एंड टू गेट द इनपुट हमने रेड कलर कर लिया. बी इनपुट के लिए हम रेड कलर ले लेंगे और ए इनपुट के लिए हम अलग कलर लेंगे ताकि हमको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए.
तो वी कनेक्ट दिस B3, तो हम यहाँ से थोड़ा सा B3 को लेकर पिन नंबर 15, तो हियर वी हैव द पिन नंबर 15, दिस इज पिन नंबर 15। आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है A2 इनपुट, सो इट्स पिन नंबर 15। B3 input we connect with the pin number 15, यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है B3 is connected with the pin number 15, A3 is connect with the pin number 40, so A3, this is A3, A3 we connect with the pin number 40, A3 we connect with the pin number 40 and we change the color because it's the second pin, तो हम इसको ब्लू कर लेते हैं, A को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेंगे और B को हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो A3 B3 हो गया, देन वी रिक्वायर्ड A4 B4, A4 B4 दोनों, जो A4 है वो है 12 नंबर पिन पे, तो A4 जो है वो 12 नंबर पिन पे, तो आप यहीं से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बचा है। F4 भी कनेक्ट विद द पिन नंबर 12 3B, इसको भी हम उससे लेते हैं पिन नंबर 12, और B4 जो रहेगा वो पिन नंबर 11 से कनेक्टेड है, B4 हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 11 से। इसको हम करते हैं रेड कलर से, तो A4 सॉरी B4 कनेक्टेड है पिन नंबर, ये है हमारा 9 10 11 से, जो A4 है वो कनेक्टेड है हमारा पिन नंबर 12 से, और 13 अभी ओपन छोड़ा है, 14 नंबर पिन है A3 और 15 नंबर पिन है हमारा B3 और 16 नंबर पिन हमारा सप्लाई वोल्टेज। नाउ द आउटपुट वोल्टेजेस, जब आउटपुट है पिन नंबर 13 है वो थर्ड आउटपुट है हमारा S3 है, तो पिन नंबर 13 अगर हम देखें तो पिन नंबर हो गया हमारा कैरी आउटपुट, तो पहले कैरी आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं, तो दिस वी कनेक्ट एज ए कैरी आउटपुट। Pin number 9 is connected with the carry output. The first we connect with the carry output. Then pin number 10 is connected with the S4. तो पिन नंबर 10 हमारा ये है, इसको हम कनेक्ट करते हैं S4 से, यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए S4। और अगर आपको आउटपुट कुछ और कलर से लेना है तो यू कैन यूज अलग डिफरेंट कलर, सपोज वी यूज एज ए पिंक कलर इज येलो कलर। एक कनेक्शन बचा है दैट इज ऑफ 13 नंबर पिन, पिन नंबर 13 जो है यहाँ पे खाली पड़ा है, इसको हमें कनेक्ट करना है S3 से, तो पिन नंबर 13 जो होगा हमारा वो S3 से कनेक्ट। सो एक बार चेक कर लें, सबसे पहले पावर सप्लाई के दो कनेक्शंस हैं, पावर रेल एक दो पावर रेल बनाई है, एक ये वाली पावर है हमारी और ये ग्राउंड है, और यहाँ पे ये पावर है और ये ग्राउंड है। फिर हमने 4 स्विचेस लिए, इन स्विच में से टर्मिनल 1 को कनेक्ट किया सप्लाई वोल्टेज से, टर्मिनल 2 को कनेक्ट किया ग्राउंड से, सभी स्विचेस में टर्मिनल 1 को कनेक्ट किया सप्लाई वोल्टेज से, टर्मिनल 2 को ग्राउंड से, सप्लाई वोल्टेज से ग्राउंड से, सप्लाई वोल्टेज से ग्राउंड से, ये कनेक्शंस कर दिए। देन आउटपुट के लिए हमने 3 एलईडीज लिया, उन एलईडीज का जो एनोड है उसको हमने किया विद एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया ताकि करंट लिमिट को कर दे, करंट लिमिटेड हो जाए और एलईडी हमारा बर्न आउट नहीं हो, तो हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया 1 किलो ओम के, और जब इसका कैथोड टर्मिनल दैट इज नोन एज अ कॉमन टर्मिनल, उसको हमने ग्राउंड कर दिया, सभी एलईडीज का कैथोड जो है वो ग्राउंड कर दिया, और सभी एलईडीज का जो एनोड है वो रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके हमने ओपन छोड़ दिया, इससे हमने आउटपुट कनेक्ट कर दिया। पहला आउटपुट है कैरी आउटपुट होगा जो कि पिन नंबर 9 पे मिलेगा, फिर सम 4 जो डायरेक्ट आईसी से कनेक्ट कर दिया क्या? कौन सा बच्चा क्या बोल रहे हैं? ये जो पिन है ना सबसे इधर वाली सर, येलो वाला जो एलईडी से जोड़ा सर, डायरेक्ट आईसी के पिन से कनेक्ट दिख रहा हुआ है। हाँ आईसी के पिन से कनेक्ट कर दिया यहाँ वाले से। ओके सर। तो वो कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ ये अपन देख लेंगे, वैसे हो जाता है कनेक्शन, तो हमने पहले भी
एंड पिन नंबर 13 को हमने यूज किया एज ए आउटपुट, थर्ड आउटपुट, हमने इसको कनेक्ट कर दिया S3 से। फिर B1, B3, B4 और A3, A4 का कनेक्शन किया हमने, और हमने इसको स्टार्ट से कनेक्शन किया। तो ये स्विचेस हैं। अब आप अगर हम देखें, अगर हम यहाँ देखें, मान लीजिए कि ये तो 0 0 मान रहे हैं, ये भी 0 0 कोई कनेक्शन अप्लाई नहीं किया हुआ है। A3 इज A3, A4, B3, B4 और दिस इज प्लस। तो मान लीजिए नंबर दिया है आपको 0 0 0 0 0 0 1 1, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0 0 0 1 1 0 1 1 और कैरी आउटपुट हमारा 0 आना चाहिए। तो हम ये आउटपुट देखते हैं। B3 और B4 को 1 1 कर देते हैं। सो वी करेक्ट B3 एंड B4 एज 1 1। B3 B4 दोनों 1 1 है और A3 A4 को करते हैं 0, इस तरफ मतलब 0, स्लाइड बार के मतलब 0, तो आउटपुट हमारा 1 1 है। अगर हम चारों को 1 1 कर देंगे, अगर हम यहाँ पे कर देंगे 1 1 0 0 1 1 0 0, आउटपुट आएगा 0 0, 1 plus 1 is 0, कैरी इज 1, 1 plus 1 is 0, 0 1 1 और कैरी यहाँ पे आएगा हमारा 1। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इफ ऑल दिस इनपुट्स आर 1, सारे इनपुट 1 है, तो सम 4, लास्ट सम इज 1 एंड द कैरी आउटपुट इज 1। सो इट्स परफेक्टली वर्किंग एज अ फुल एडर सर्किट। अगर हमें और आउटपुट देखना है तो यू कैन कनेक्ट दिस टर्मिनल आल्सो। दिस आउटपुट टर्मिनल है, ये इनपुट 2 टर्मिनल्स हैं, फिर ये आउटपुट टर्मिनल 2 इनपुट, पर बहुत हॉचपॉच, बहुत जम्बलिंग हो जाता है। इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस सर्किटरी। इसलिए मैंने एक सर्किट छोटा बनाया जिसमें हमने 2 बिट्स को हमने मान लिया कि दो जो इनिशियल 2 बिट्स हैं A0 A1 और B0 B1 दे आर ग्राउंडेड, वो 0 0, और जो भी हम वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं वो A3 A4 पे और B3 B4 पे। तो वी गेट दिस आउटपुट। सभी का हो गया? हेलो, यस, यस सर। हेलो सर, ये तो अगर जिसका हो गया है वो इसका फोटो क्लिक कर लें, 2 कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन बना के और उसको सबमिट कर दें। सर ये जो अभी जो सिचुएशन दिख रही है इसमें वो 1 वाली है क्या सारी, ये 0 वाली है? ये तो 1 इसमें वाली है 1 ना? 1 लिया, सबको 1 लिया है। अगर ये स्विच इस तरफ है तो 1 है, क्योंकि ये 1 से सर कनेक्ट किया हमने टर्मिनल 1 को, और अगर ये इस तरफ है तो ग्राउंड है 0। सारे 1 कर देंगे तो फिर 0 आ जाएगा पूरा, कोई भी सारे 1 राइट कर ग्लो नहीं देंगे, करेगा। 0 1 और कैरी 0। सर फोटो क्लिक किस किस कंडीशन में करना है? फोटो सारे 2 one कोई में? कॉम्बिनेशन लीजिए, सारे 1 में ले लीजिए और 0 0 0 0 1 1 ले लीजिए, ओके सर। 2 पे फोटो। सर पावर सप्लाई में वैल्यूज कैसे पुट करनी है? पावर सप्लाई में बाय डिफॉल्ट वैल्यूज तो 5 वोल्ट से आएंगी बच्चे, जैसे ऑन करोगे आप तो 5 वोल्ट से आएगा। अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, पर अभी नहीं करना है, क्योंकि डिजिटल सर्किट्स में अगर हम डिजाइनिंग करते हैं तो 5 वोल्ट्स और 6 मिली एम्पियर्स का करंट ही इसमें होता है, वो सेट है पावर सप्लाई में डिजिटल सर्किट। यस सर। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमको परफॉर्म करना है और इसको सबमिट करना है। और एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे हम मल्टीप्लेक्सर्स का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग डिजिटल सर्किट है। ये डिजिटल सर्किट है जिसमें अगर हमें एक बिट को ऐड करना, जैसे हमारे कैलकुलेटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उन सब में 8 बिट 16 बिट का एडिशन होता है, तो इसका रेप्लिका बना देते हैं। ये 4 बिट की आईसी है, अगर इसे हम 2 आईसी लगा देंगे तो वो 8 बिट का बन जाएगा एडिशन। अगर 3 लगा देंगे तो वो 4 + 4 + 4 12 पिन का 12 नंबर्स को 12 डिजिट को ऐड करेगा। अगर एक और बना देंगे 16 डिजिट को ऐड करके, तो जितने एडिशन, जितने बिट का एडिशन करना है उतने आप सीरीज में कनेक्शन कर सकते हैं। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज फॉर फुल एडर सर्किट। अगर इसका नहीं हुआ वो मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप वीडियो से देख के कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा नेक्स्ट सर्किट की बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरी एक ही लैब बची है, एक लैब और लूंगा, उसके बाद हम एक असाइनमेंट करेंगे यूजिंग नेट, हम लाइव सर्किट बनाएंगे और वहां पे लैब खत्म करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक और लैब होगी। नेक्स्ट वीक शायद से हॉलीडेज आ रहे हैं बहुत सारे, देखते हैं, एक वीक और चाहिए मुझे जिसमें हम काउंटर्स और फ्लिप फ्लॉप्स करेंगे, ताकि आपको थ्योरी भी समझ में आ जाए और एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से बहुत सारी थ्योरी क्लियर होती है। अब नेक्स्ट ये तो यहाँ तक आप, अगर नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है वो वीडियो में आपको भेज दूंगा, उस वीडियो रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। अपन एक और सर्किट देखते हैं मल्टीप्लेक्सर का। तो
मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं? तो मल्टीप्लेक्सर जनरली होते हैं मेनी टू वन मक्स, इसको बोलते हैं। जनरली ये होता है 4:1 मल्टीप्लेक्सर, जिसमें 4 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है और 2 सिलेक्शन लाइन्स हैं, S0, S1, I0, I1, I2, I3 और ये आउटपुट है। मल्टीप्लेक्सर जनरली एक बार दिखा दीजिए सर। हाँ सर, आप ये तो फोटो क्लिक कर लो उस चीज का। सर इसमें हमने एंड वाली ही पिन्स ली है ना, जो सबसे आखिरी में जा रही थी, दो आउटपुट वाली जो है। हाँ, 2 आउटपुट में एक तो कैरी आउटपुट है, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये कैरी आउटपुट है और ये सम 3 आउटपुट है, ये सम 4 आउटपुट है ना। चलिए, तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर इज मेनी टू वन। अब इसका यूज क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास 4 रोड है, 4 हाईवेज आ रहे हैं, 4 रोड आ रहे हैं यहाँ से, और जो आगे जाके जो रोड है वो केवल एक सिंगल रोड में कन्वर्ट होता है। तो मुझे ट्रैफिक को अरेंज करना है, एक इस ट्रैफिक को एक कुछ टाइम के लिए इस ट्रैफिक को इस रोड पर अलाउ करना है। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं सबको अलाउ कर दूंगा, ये सब सारे चार एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे, तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज ट्रैफिक जैम है। अब इस ट्रैफिक को मुझे मैनेज करना है, स्मार्टली मैनेज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं मल्टीप्लेक्सर लगा के इसको स्मार्टली मैनेज करूंगा। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है जनरली? मल्टीप्लेक्सर जनरली क्या करता है कि हर किसी इनपुट को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मौका देता है आउटपुट से करेक्ट होने के लिए। तो 4 इनपुट है, I0, I1, I2, I3, तो 2 सिलेक्शन लाइन होंगे, S0 और S1। जब S0 और S1 की वैल्यू 0 0 है, उस समय ये बोलता है कि जो आउटपुट 0 होगा वो इससे करेक्ट होगा। तो आउटपुट जो इनपुट 0 का जितना ट्रैफिक है वो उस समय आउटपुट पे ट्रांसफर होगा। जब सिलेक्शन लाइन 0 0 है तो हम लिख सकते हैं आउटपुट 0 क्या हो जाएगा? I0 हो गया। जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 1 है, मैं कलर चेंज कर लेता बाकी, तो जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 1 है, जब 0 1 सिलेक्शन लाइन तो बोलता है कि जो I1 का जितना ट्रैफिक है अब हम ये ट्रांसफर करेंगे, ये बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या आ जाएगा? I1 का ट्रैफिक आ जाएगा। थर्ड कलर में मान लीजिए 1 0 है, ऑरेंज कलर लेते हैं, 1 0 1 0 पे क्या करता है? ये I3 का जितना ट्रैफिक है वो आउटपुट पे ट्रांसफर करता है, तो आउटपुट क्या हो जाता है हमारा? I2। और अगर फोर्थ कलर मान लीजिए हम ये पर्पल कलर लेंगे, जब 1 1 होगा तो क्या करेगा? ये फोर्थ वाले ट्रैफिक को यहाँ डाल देगा, तो फोर्थ वाले ट्रैफिक को इसने यहाँ डाल दिया। तो विथ रिस्पेक्ट टू द सिलेक्शन लाइन की क्या वैल्यू है? जो आउटपुट है वो इनपुट से कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मेनी टू वन, बहुत सारे यूजर्स है और उसको मुझे एक लाइन पे ट्रांसफर करना है, एक यूजर को ट्रांसफर करना है, तो मैं सबको ट्रांसफर करूंगा तो कोई सुनाई नहीं देगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 बाय 1 सबको चांस देना पड़ेगा। अब एक चांस हम किससे देते हैं? चांस हम सिलेक्शन लाइन से देते हैं, S0 S1 से देते हैं। सिलेक्शन लाइन की जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम चांस इसको देते हैं। ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर है। ऐसे ही मल्टीप्लेक्सर होता है क्योंकि 4 इनपुट एक आउटपुट है, इसको 4:1 मिलेंगे। एक होता है इसको बोलते हैं 8:1, जिसमें 8 इनपुट है और एक आउटपुट है, इसको बोलेंगे 8 इनपुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट। तो 8 इनपुट को चांस देने के लिए, प्रॉपर चांस देने के लिए मुझे 3 सिलेक्शन लाइन चाहिए, S0 S1 S2, और ये आउटपुट चाहिए। आउटपुट हमेशा एक रहेगा मल्टीप्लेक्सर। तो 4:1 हो सकता है मल्टीप्लेक्सर 8:1 हो सकता है, मल्टीप्लेक्सर 6:1 हो सकता है, मल्टीप्लेक्सर 2:1 भी हो सकता है। 2:1 मल्टीप्लेक्सर, अब हम सर्किट जो डिजाइन करेंगे वो 2:1 मल्टीप्लेक्सर की डिजाइन करेंगे ताकि वो थोड़ा सा इजी रहे बनाने में, क्योंकि हमें इंटरनल सर्किट बनाना है इसका। 2:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? 2:1 मल्टीप्लेक्सर हमारा होता है जिसमें 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, और 2 इनपुट को प्रॉपर चांस देने के लिए मुझे एक सिलेक्शन लाइन चाहिए। इनपुट क्या क्या है हमारे? I0 I1 2 इनपुट है और एक आउटपुट है Y। तो जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 है तो हम ये बोल रहे हैं कि आउटपुट जो होगा Y, जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू हमारी 0 होगी तो आउटपुट Y पे I0 का पूरा ट्रैफिक जाएगा, I1 से कुछ भी नहीं जाएगा, I1 डिस्कनेक्टेड रहेगा। और जब सिग्नल की वैल्यू 1 हो जाती है, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो I1 का जो ट्रैफिक है वो जाएगा और I2 का ट्रैफिक वहां से खत्म हो जाएगा। तो जब सिलेक्शन लाइन 0 है
तब I0 और सिलेक्शन 1 है तब I1। अगर मैं इसको बुलियन एक्सप्रेशन लिखूं तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि I0 सिलेक्शन लाइन S0 पे आ रही है तो इसको लिखते हैं S कॉम्प्लीमेंट I0 प्लस S I1। इसका बुलियन एक्सप्रेशन इस समझ में आया कैसे हुआ। अगर मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना होता तो क्या लिखते हैं, मैं लिखता है S0 बार, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, S1 बार, इसके बाद क्या आउटपुट आ रहा है I0 आ रहा है, बहुत सिंपल है, प्लस ये क्या है कॉम्प्लीमेंट S0 बार, ये 1 है S1 I1, प्लस इसके लिए क्या लिखता मैं S0 S1 बार क्योंकि यहाँ 0 है I2 प्लस S0 S1 I2। तो बहुत सिंपल है इसका एक्सप्रेशन लिखना। तो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। अब ये एक्सप्रेशन हम देखें तो ये एक्सप्रेशन कैसे बना है। अगर आप सिंपल बात करें तो दो एंड गेट है और एक और गेट है। इस एंड गेट का एक इनपुट है I0, एक इनपुट है I1 और एक इनपुट है हमारा S। तो यहां पे जाएगा S। जब S की वैल्यू 0 रहेगी, 0 मतलब इन्वर्टेड होगी वो 1 हो जाएगी, सॉरी 0 मतलब ये 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी तो I की वैल्यू जो होगी वो यहां से पास हो जाएगी। जब S की वैल्यू 1 रहेगी तो ये 0 हो गया और ये I1 यहां से पास हो जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। मेनी टू वन, बहुत सारी लाइन है, मान लीजिए आप ट्रैफिक देख लीजिए कि कहीं 8 लेन का ट्रैफिक आ रहा है, उसको एक लेन में मुझे कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं रैंडमली सबको छोड़ दूंगा, सब ट्रैफिक को, जैसे हम हमारा ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोल होता है, ये भी होता है, यही करता है मेनी टू वन, एक बार में एक लाइन को क्लियर करता है ताकि एक तरह का ट्रैफिक चल जाए, तो उसको बोलते हैं मेनी टू वन। और मेनी टू वन के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर जनरली डिजाइन करते हैं हम एंड गेट और गेट और इन्वर्टर से। हम उनसे डिजाइन करेंगे। तो चलिए सर इसका रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ पे यूज होता है? रियल लाइफ एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ट्रेन का एक ट्रैक है, जैसे आप बोलते हैं ट्रेन का ट्रैक चेंज करते हैं ना, तो मेनी टू वन बहुत सारी, जैसे मान लीजिए यस सर। फॉर एग्जांपल ये स्टेशन है हमारा, ये रेलवे स्टेशन, इंदौर रेलवे स्टेशन मान लीजिए। तो इस इंदौर रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रैक हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 प्लेटफॉर्म से हमारे इंदौर पे, 1 2 3 4 5। और आगे जाके तो यहाँ पे जो है वो केवल 2 ट्रैक है जो कि आगे जाते हैं। अब मुझे अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ट्रेन को इधर ट्रांसफर करना है तो मुझे सिग्नलिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि वो इधर ट्रांसफर हो जाए। कहीं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन को मुझे इधर ही ट्रांसफर करना है, तो मान लीजिए मैंने ये तो एक ट्रैक है जिसको इनपुट के लिए रखा है और ये ट्रैक मैंने आउटपुट के लिए रखा है, ये आने वाली ट्रेन के लिए, जाने वाली ट्रेन के लिए। तो इन 3 में से मुझे किसी एक ट्रेन को इस ट्रैक पे डाला है, तीनों को एक साथ डालूंगा तो सब कोलिजन हो जाएगा। तो मुझे किसी एक ट्रेन को यहाँ ट्रांसफर करना है, तो मुझे सिग्नलिंग यहाँ लगती है। वो सिग्नलिंग से हम डिसाइड करते हैं कौन सी ट्रेन यहाँ पे हर ट्रैक पे सिग्नल लगा होगा। जिस ट्रैक में जिसका ग्रीन सिग्नल होगा वो ट्रांसफर होगा, वो यहाँ पे इस पे जाएगी। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है। टेलीफोन लाइन में रियल लाइफ एग्जांपल, जब हमारे पास जो हैंडसेट टेलीफोन लाइन हम यूज करते थे उसमें बहुत सारे यूजर्स हैं, पर एक्सचेंज पे तो लिमिटेड लाइंस है। तो सब यूजर में से किस यूजर को मुझे आउटपुट से कनेक्ट करना है वो हम मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू करेंगे। कभी-कभी मैं ऑनलाइन आपके मोबाइल में जो सिम, आपके मोबाइल में अगर डुअल सिम है तो डुअल सिम में मल्टीप्लेक्सर लगी है, जबकि दोनों में से किसी एक सिम को सेलेक्ट करके कॉल भेजता है। वो दोनों सिम से साइमल्टेनियस तो नहीं भेज सकता सिग्नल्स। तो सिम में जो अगर डुअल सिम मोबाइल है तो उसमें मल्टीप्लेक्सर लगा होगा। मल्टीप्लेक्सर मींस मेनी टू वन। आपके पास नंबर ऑफ चॉइस बहुत ज्यादा है पर आपको एक को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लेक्सिंग लगाते हैं। तो दैट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए अब इसका रियल टाइम हम सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं कि मल्टीप्लेक्सर बनाते कैसे हैं लोग। तो वापस से अपन आ जाए हमारे टिंकर कैट पे और सर्किट्स में आ जाए, क्रिएट सर्किट, और हम एक ब्रेडबोर्ड ले लें। सबसे पहले तो वापस से बड़ा ब्रेडबोर्ड चाहिएगा मुझे, एक बड़ा ब्रेडबोर्ड ले लिया मैंने यहाँ से। और चूंकि सर्किट के लिए मुझे, इस सर्किट को बनाने के लिए मुझे 3 तरह की आईसी चाहिए, एक एंड गेट और एक और गेट। इन्वर्टेड फॉर्म तो हम जनरेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो एंड गेट के लिए आईसी सर्च करिए इसमें 7408 या फिर एंड गेट लिख देंगे तो भी आ जाएगा। सर्च करिए एंड गेट, तो देखिए यहाँ पे क्वाड नेट आया है, ये रहा क्वाड एंड गेट। इसको सिलेक्ट करिए, 7408 को सिलेक्ट कर लीजिए, ये हमारी एंड गेट आईसी है। फिर सिलेक्ट कर लीजिए और गेट,
क्योंकि एंड और ऑर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो ऑर गेट सेलेक्ट कर लीजिए। इसे ऑर गेट सेलेक्ट करेंगे तो और नहीं आ रहा है तो और गेट लिख लीजिए। और गेट की जो आईसीज है ये नॉर है, ये और गेट है 7432 7432 दो गेट्स हो गए हमारे, तीन इनपुट रहेंगे S0, एक तो हमारा 2:1 बना रहे हैं हम, तो दो इनपुट रहेंगे I0 I1 और एक इनपुट रहेगा सिलेक्शन। तो स्विच ले लीजिए, दो स्विच ले लेते हैं, एक स्विच ले लेते हैं I0 के लिए, एक स्विच ले लेते हैं I1 के लिए और एक स्विच ले लेते हैं सिलेक्शन लाइन के लिए। तीन स्विचेस ले लिए हमने और आउटपुट के लिए एक एलईडी भी ले लेते हैं हम, एक रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं आउटपुट के लिए जो कि यहाँ से कनेक्टेड होगा, और एक पावर सप्लाई लेते हैं। कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी अगर हमको सर्किट को डिजाइन करना है? पावर सप्लाई लेते हैं, पावर सप्लाई। चलिए सबसे फर्स्ट पावर लाइन बना लीजिए। दो पावर लाइन चाहिए हमें वापस से, क्योंकि बड़ा सर्किट है। एक पावर लाइन ये ले लिया, यहाँ से पावर लाइन को वापस कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया यहाँ से हमने, तो ऊपर की रेल भी पावर चल रही है, नीचे की रेल भी पावर चलेगी। यानी ग्राउंड लाइन ले लिया, ग्राउंड लाइन के लिए ब्लैक कलर यूज कर लीजिए, ग्राउंड के लिए ग्राउंड कर लीजिए और थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ कर देते हैं ताकि इस लाइन को थोड़ा सा इधर से ताकि ग्राउंड लाइन इजी है। सबसे पहले पावर और ग्राउंड लाइन लगा दी हमने। अब जरा सा हम सिग्नल्स देख लें, क्योंकि हमें सिग्नल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं इसको I0, इसको ले लेते हैं हम I1 और एक लेते हैं सिलेक्शन लाइन, इसको लेते हैं सिलेक्शन लाइन। अब देखिए ये बहुत सिंपल है, हमने एंड गेट के एक्सपेरिमेंट तो किए ही हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं, इसका ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड पिन से, इसका ग्राउंड भी कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड पिन से, और इसका भी ग्राउंड पिन से हम ग्राउंड कनेक्ट करते हैं। फिर आईसी को सप्लाई देना है, तो आप ग्रीन कलर ले लीजिए। सप्लाई मतलब 14 पिन, ये सप्लाई हो गया। इसको कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से सप्लाई वोल्टेज से, इसको कर दीजिए यहाँ सप्लाई वोल्टेज से, और बस दो सप्लाई। अब सारे स्विचेस का फर्स्ट इनपुट टर्मिनल 1 सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, और सारे इनपुट का सेकंड टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड को ब्लैक कलर से ले लेते हैं। ये शॉर्ट मत कर देना, शॉर्ट कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। सारे स्विचेस का फर्स्ट टर्मिनल जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया सप्लाई वोल्टेज से, सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड से। चलिए अब सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो हमें करना है हमें क्या करना है S इंटू I0। तो अभी हम S ही ले लेते हैं। S को हम सिलेक्शन लाइन को हम 0 1 0 1 बाद में करेंगे, पर हमने लेना है I0। तो ये I0 हमने लिया है फर्स्ट इनपुट, देख लीजिए इनपुट 1 S एज इनपुट 1। अभी आउटपुट छोड़ देते हैं। फिर सेकंड में I1 इंटू S करना है, I1 सेकंड में, सेकंड गेट में, और S वापस से S को मुझे करना है, तो S को हमने यहाँ से शॉर्ट कर दिया। अगर आपको कनेक्शन दूसरे करना है तो आप कलर चेंज कर लीजिए ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए हमको क्या कनेक्शन करना है। सर ये I0 वाला कनेक्शन में ब्लैक कौन सा वाला मुझे?
वाला ऊपर जो पावर सप्लाई का नेगेटिव वाला है। इसका ये वाला इसका और और गेट में जो फर्स्ट आउटपुट है जो जैसे कनेक्शन का वाला है। फर्स्ट आउटपुट को हम कनेक्ट करते हैं फर्स्ट इनपुट ऑफ और गेट, सेकेंड आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं सेकेंड इनपुट ऑफ और गेट, और थर्ड आउटपुट जो रहेगा उसको ग्रीन कर लेते हैं, वो हमारा एलईडी हो जाएगा, तो वो हमारा LED हो जाएगा। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कोई बता सकता क्या क्या समझ में आ रहा है? एलईडी ग्लो हो रही मतलब क्या समझ में आ रहा है इससे? कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसमें? सिलेक्शन लाइन क्या है अभी? 1 है सर 0 है। हाँ, जीरो है सर। One वन है box सर। लाइन तो 1 है क्योंकि हमने ये सप्लाई की तरफ है, ये 0 की तरफ है, ये ग्राउंड की तरफ। अब सिलेक्शन लाइन 1 है, इसका क्या मतलब हुआ? I1 आउटपुट किसका? I1 आउटपुट से कनेक्ट होगा, तो I1 की वैल्यू 1 है तो इसलिए कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं I1 को 0 करूंगा तो आउटपुट 0 हो जाना चाहिए। देखिए I1 को मैंने 0 किया तो आउटपुट यस सर। 0 हो जाना चाहिए। 0 नहीं हो अब सिलेक्शन लाइन को हम कर देते हैं मान लीजिए 1, तो ये हो रहा है I0 को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सिलेक्शन लाइन जो है वो हमारा डिसाइड करेगा कि हमें I0 को सिलेक्ट करना है या I1 को सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्शन लाइन 0 हो गया तो वो I1 को सिलेक्ट करेगा, 0 हो गया तो I0 को सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्शन 1 हो गया तो वो I1 को सिलेक्ट करेगा। सर बट I0 भी यहाँ पे 1 है तो सर उसका आउटपुट वो शो क्यों नहीं कर रहा है एलईडी पर? आउटपुट इसका 1 है, एक सेकंड में देखें इसको। ये हमारा इनपुट है फर्स्ट, ये हमारा सेकंड इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, और ये हमारा इनपुट है। Sir, where is the S not input? ये S नॉट नहीं दिया बच्चा, हमने S को हम 0101 करके चालू कर रहे हैं। तो है सर ना? अगर हम उसको 0 कर रहे हैं तो मान रहे हैं कि S नॉट है ना? और जब हम उसको 1 कर रहे हैं तो बोल रहे हैं S है। सर लेकिन दोनों के इनपुट तो साथ में ही होंगे ना? हाँ, वैसे हमको एक इन्वर्टर लगा के कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि हमने गलत कनेक्ट किया है। यहाँ पे एक इन्वर्टर होना चाहिए, छोटे इन्वर्टर इन्वर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। हमने यहाँ पे गलत किया है, कोई स्विच लगा के उसको हमें S नॉट करना चाहिए। अच्छा, ये हमने गलत किया, सॉरी एक सेकंड, मेरे सर्किट बना रखा है शायद से, 1 सेकंड। अभी ये केवल S के लिए चलेगा, केवल एक S के लिए चलेगा। S नॉट चलाने के लिए हमें एक इन्वर्टर, एक स्विच और लेना पड़ेगा जो कि इसका जस्ट अपोजिट हो। अपोजिट स्विच कैसे बनेगा? अब यहाँ पे जगह नहीं बची है, एक अपोजिट स्विच यहाँ बना देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो टर्मिनल 1 है उसको कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से, और टर्मिनल 2 को कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई से। और S नॉट, हम ये S नॉट लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको ये S नॉट हमारा कनेक्ट होना चाहिए I0 से। ये भी कनेक्शन हम डालते हैं। तो अब मेरे अंदाज से चलना चाहिए, ये S है और इसको हम नाम देते हैं S नॉट, और ये हमेशा अपोजिट चलेंगे दोनों। अगर एक 1 है तो एक 0 होना चाहिए। S इसको बोलते हैं N, S नॉट, दोनों अपोजिट रहेंगे। अगर अभी हम इसको 0-1 पर सेट कर लेते हैं, अपोजिट सेट कर लेते हैं, तो अभी क्या हो रहा है? अगर S 0 है तो इसको I1 को सेलेक्ट करना चाहिए था,
सर हमने एस का इनपुट तो कहीं सेट ही नहीं किया। सर एसएन को हमने सर ठीक से कनेक्ट नहीं किया। सर इसको एसएन बच्चे के दोनों इनपुट को अपन ने मतलब ग्राउंड कर दिया अच्छा था। इसको हमने दोनों इनपुट ग्राउंड है सर। एसएन दोनों इनपुट वो दोनों ग्राउंड कर दिए हमने टर्मिनल्स को एसएन। एक सेकेंड दोनों इनपुट को ग्राउंड कर दिया क्या? यस सर। ये हमारा कनेक्टेड है टर्मिनल 1, अच्छा ग्राउंड से कनेक्टेड है, और टर्मिनल 2 को हमको पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। ये पावर सप्लाई से तो ये तो एस बार हो गया, एस बार को हमने कनेक्ट किया है इससे, और इसको हमने कनेक्ट करना है यहाँ से। अब देखते हैं क्या होता है। अगर s की वैल्यू, अभी हम इसको s मान रहे हैं, s की वैल्यू 0 है तो s बार की वैल्यू 1 है, तो वो i को ट्रांसफर करना चाहिए, और i अभी भी ट्रांसफर नहीं है। i1 ट्रांसफर हो रहा है, i1 ट्रांसफर सर नहीं हो रहा है। इसको 0 किया, क्यों नहीं होगा बच्चे? सर एस और एस एन दोनों के स्विच को सेम रखना पड़ेगा ना, तब जाके दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि उन दोनों के कनेक्शन अलग हैं। अगर हम दोनों को सेम रखते हैं, अब वो फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही, वो i0 को फॉलो कर रहा है, जो i0 में हम दे रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर हम दोनों के स्विच को 1 कर देते हैं तो वो i1 को फॉलो करना चाहिए, वो i1 को फॉलो करना, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चे, समझ में आया? सर समझ नहीं आया कनेक्शन। समझ, देखो मेरे पास सुनो, ये S है और हमने इसको S बार बना दिया। S बार कैसे बना दिया? जस्ट के अपोजिट कनेक्शन करते हैं। टर्मिनल 1 को हमने यहाँ पे सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, सेकंड टर्मिनल हमने ग्राउंड कर दिया। इसका जस्ट अपोजिट, फर्स्ट टर्मिनल हमने ग्राउंड कर दिया और सेकंड टर्मिनल इसका हमने सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। मतलब अगर स्विच इस पोजीशन में रहेगा तो वो ग्राउंड रहेगा, इस पोजीशन में रहेगा तो सप्लाई वोल्टेज रहेगा। तो ये इसका जस्ट अपोजिट चल रहा है। तो दोनों अगर सेम पोजीशन पे हैं, दोनों सेम पोजीशन पे मतलब एक वैल्यू दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? देखो इसको फॉलो करेंगे। ये 1 है, s की वैल्यू मान लीजिए 1 है, अभी ये 1 ही रहेगा क्योंकि इस पोजीशन पे है। ये 1 है तो ये 0 रहेगा, अगर ये 1 है तो ये 0 रहेगा। तो ये 1 अगर हमने ट्रांसफर किया है तो वो i1 को फॉलो करेगा, और जब हम इसको s0 कर देंगे तो वो i0 को फॉलो करेगा। अगर इसको दोनों को s0 कर दें तो ये i0 को फॉलो करेगा। ये देखिए, मतलब हमने सर्किट में अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, इस सर्किट की अगर हम बात करें तो हमने एक इनपुट की जगह हमने 2 इनपुट लगाए हैं। एक इनपुट लगाया है S और एक इनपुट लगा रहे हैं हम S कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हमने किया। अदरवाइज और सिंपल क्या होता, अगर मैं और सिंपल सर्किट बनाना हो तो क्या होता कि हम इन दोनों स्विच की जगह एक इन्वर्टर आईसी ले लें। हमारे पास एक इन्वर्टर भी रखा हुआ है, ये इन्वर्टर आईसी हैक्स इन्वर्टर, इसको ले लेते हैं और इस इनपुट S को हम यहाँ करके और S बार को हम जनरेट करके और इस S बार को हम दूसरे पिन में दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इस समझ में आया कैसे करेंगे? अगर हमें 2 स्विच नहीं लगाना है, S और S बार के लिए स्विच नहीं लगाना है, तो हम क्या करें? चलिए मैं करके बताता हूँ। इस स्विच को हटा दें, कंफ्यूजन है तो इस स्विच को हम हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, ये S सिग्नल है, ये हमारा S सिग्नल है, इस S से हम एक S बार जनरेट कर लेते हैं। ये हमारा इनपुट 1 है और ये S कॉम्प्लीमेंट को हम दे देंगे यहाँ पे। इसको कर दीजिए ग्राउंड, इसको कनेक्ट कर दीजिए सप्लाई वोल्टेज से। तो अब ये इन्वर्टेड फॉर्म आ रहा है। देखिए यहाँ अगर इस गेट पे देखेंगे तो ये आ रहा है इनपुट, पहला इनपुट कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है I0 और दूसरा इनपुट कहां से आ रहा है? इस IC से आ रहा है। तो ये आउटपुट क्या है? ये आउटपुट है हमारा S बार। तो I0 इंटू S बार हमारा यहाँ जनरेट हो रहा है और I1 इंटू S हमारा जनरेट हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया? यस सर। अगर हम इसको इनिशिएट करें तो देखिए, ये उसको फॉलो करो।
तो जनरली सर्किट हमें यही बनाना था, तो आप ये भी सर्किट बना सकते हो, वो भी सर्किट बना सकते हो। अब सर्किट डिजाइनिंग आप पे डिपेंड करता है। तो हमें 2 सर्किट बनाना है, इसकी डेडलाइन मैंने दिया है संडे तक, आपको इसको संडे तक सबमिट करना है, और जो फुल एडर वाला सर्किट है वो आज हमें सबमिट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी हमारी क्लास होगी, अगर कोशिश करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को वापस से अगर ज्वाइन कर सकें, तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप और काउंटर दोनों पहले उसकी थ्योरी लर्न करेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स होते क्या हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, सर्किट कैसे बनाएंगे, आईसी क्या होती है, फिर हम एक काउंटर डिजाइन करेंगे। काउंटर मींस जैसे मैंने आपको बताया था, हमने 7 बीसीडी काउंटर बनाया था, तो उस काउंटर को कैसे हम ऑटोमेटिकली बनाए, वो अपने आप कैसे चलेगा 0 से लेकर 15 तक, और फिर वापस से 15 से लेकर 0 हो जाए, फिर 15 0 0 15 वो कंटिन्यू चलता रहे, हर क्लॉक पल्स वो अपनी काउंटिंग करे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 0 1 2 3 4 5 6। तो हम एक काउंटर डिजाइन करेंगे, एक फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ इवेंट्स को हम काउंट करेंगे और उन इवेंट्स को हम डिस्प्ले करेंगे आउटपुट डिस्प्ले को। एक वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो सर फुल एडर वाला आज सबमिट करना है? हाँ, फुल एडर वाला आज सबमिट करना है, मल्टीप्लेक्सर वाला आज भी कर सकते हैं, या फिर उसकी डेडलाइन संडे तक है, तो आप संडे तक सबमिट कीजिए। ओके सर। तो आज हम यही खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट है किसी को तो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा।